Good morning, students. Today, 29th of the April, triangle, chapter triangles. We are going to study one. Yesterday, we have learnt about some congruence of triangles, few property of congruency. One is axiom, that is side angle side. First one is side angle side. Then from here we have just defined, not stated, rather you can say, angle side angle, its corollary, and third I had given the statement of RHS. One more which was left there, that is side side side. If all the three sides of a triangle are equal to the three sides, what is side side side? If the three sides, तीन ही साइड तो होते ही हैं, ज़्यादा साइड तो होता नहीं है कि हम चार साइड या पांच साइड की बात कर लें. If the three sides of an angle is equal to, if three sides of one triangle are equal to, not is, are equal to the three sides of other triangle, of another triangle, a triangle कहते हैं other triangle, another triangle, then these two triangles, then the two triangles are congruent, and this very property is called side side side. Now here there is no need to prove that angles are also equal. Only proving the three sides of one triangle are respectively equal to the three sides of another, then the triangles are said to be congruent. Automatically the angles are also equal. वो proof की बात है, but proof is only required for that. Proof is only required for that. But to clear the concept, you may find the proof of this very particular theorem. But proof of this ASA must you have to know. As I said, I will discuss it at last. First we just know, remember the concept, remember the statement of the four property. One is the axiom, there is no need to prove it, and another four are axiom. This is the corollary based on this one. RHS means here right angle must be required, triangle should be right angle. SSS में भी राइट एंगल हो सकता है, ASA में भी राइट एंगल हो सकता है, SAS में भी राइट एंगल हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है. बट RHS के लिए राइट एंगल का होना जरूरी है एंड हाइपोटेनस का इक्वल होना जरूरी है, और दोनों बचे हुए दो साइड में से कोई एक साइड का आपस में इक्वल होना जरूरी होता है. ठीक है ना. तो दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एंड कॉन्ग्रुएंसी इन व्हाट? इन ट्रायंगल. एंड देन वी हैव टू फर्स्ट theorem. That theorem is what? These are also theorem. These theorems to be in the syllabus you will find in the part of geometry. There's somewhere you have written, you find prove, and somewhere you find motivate. Wherever it is written prove, that means that theorem must be proved, and the proof of the statement must be remembered because it can be asked in the examination. And the part in which motivation is given, motivate, means you are going to get some problem based on the concept. Is it clear? So the very first exercise on the triangle, we are going to a very first one is very known property, you should know it with proof. It can be asked in the examination. AB is a line segment and there is a perpendicular bisector of the line segment. AB, okay, AB is a line segment
not line segment, and a line L is its perpendicular bisector. Its perpendicular bisectors. ठीक है. If a point P lies on L, lies on the line L, then so that P is equidistant from both the end point of the line segment AB, A and B. And this concept can be used in anywhere in the geometry. What it says, that AB is a line segment, okay, and there L is a perpendicular bisector of it. L is a perpendicular bisector of it, means if this is point of intersection, then M is equal to BM, as well as this angle is 90 degree. Okay. So part of solution or part of proof में आप चलो. AB is a line segment, means both the end point known. L is its perpendicular bisector, bisecting AB at M. AB at M. So क्या मिल गया हमें? AM इक्वल टू BM मिल गया. और P आप कोई पॉइंट यहां ले चुके हो. P be any point on L. तो प्रूफ हमें करना है PA must be equal to PB. PA must be equal to PB. क्लियर है? नाउ PA must be equal to PB. तो ये तो आपको ज्वाइन कर ही लेना है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, ये तो प्रूफ करना है, इसलिए. Now just see, how can you prove that PA equal to PB? Very simple. We clearly see there is two right angles on both sides of the line L. That one is PMA and PMB. PMA and PMB. अब राइट एंगल है तो RHS नहीं लगेगा, ये जान लीजिए, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट देयर हाइपोटेन्यूज. इसको तो हमें इक्वल दिखाना ही है, तो RHS नहीं लगेगा. सो देन इक्वल दिखाना है, दो ट्रायंगल है, एक साइड्स को इक्वल दिखाना है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दो पहले. इन ट्रायंगल PMA एंड ट्रायंगल PMB, व्हाट नॉलेज यू हैव फ्रॉम दिस फिगर? कौन कौन सी चीजें आपको मालूम है? डू यू नो एनीथिंग फ्रॉम these two figures? In order, suppose we are going to prove these two triangles congruent, so we know SAS. Do you think this concept can be applicable here? क्या आपको लगता है कि इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड और उसके बीच का एंगल हम बराबर दिखा सकते हैं? चलिए देखते हैं. हम M इक्वल टू BM, क्योंकि L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये कह सकते हैं. Since L is perpendicular bisector of AB, तो M इक्वल टू BM. ओके, एक साइड तो मिल गया. इन दोनों साइड को इक्वल दिखाना है तो उनके बारे में सोचना है. तो दूसरा साइड क्या बचता है? PM. क्या देखते हैं हम लोग? PM इन दोनों में कॉमन है, यानी एक और साइड कॉमन है तो इक्वल भी होगा. क्योंकि दोनों का ये कॉमन साइड है, दे आर इक्वल. अच्छा, दो साइड मिल गया, तो अब हमारे पास एक और चीज़, अभी आज जो पढ़ा हमने साइड है, तो क्या ये लग सकता है? नहीं लग सकता, बिकॉज द थर्ड साइड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, तो ये तो लग ही नहीं सकता. तो क्या इनके बीच का एंगल, दीज टू साइड्स, इनके बीच का एंगल ये हुआ और ये हुआ, क्या ये दोनों इक्वल हैं? Are they equal? Yes, because they are perpendicular, they are 90 degree. And PMA equal to PMB, because they are 90 degree. क्यों 90 है? क्योंकि L जो है
ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है. सो व्हाट वी सी दैट ट्रायंगल पी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम बी. किससे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से. और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पी ए इक्वल टू पी बी जो हमें प्रूफ करना है. क्यों लिखेंगे? सी पी सी टी बताया था हमने आपको पिछले वीडियो में. पी ए इक्वल टू पी बी. सो वी हैव जस्ट प्रूव. तो वेन एवर यू फाइंड दैट ए पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, दो चीजें हैं, इसी से आप कह सकते हो. इसका उल्टा भी कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, दैट वेरी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू बोथ द एंड पॉइंट्स. अगर कहीं भी हमें मिल गया कि एक पॉइंट एक कोई लाइन दे दिया और हमें पता है कि ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ये लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया पी एंड क्यू. We know that A is on the perpendicular bisector of AB. There is no need to prove all these things. We can say that AP equal to AQ by using this very concept in any future. ठीक है ना, हम कह सकते हैं. हाँ, अगर यही क्वेश्चन दे दिया तब तो हमें प्रूफ करना है. If you get the same question, then you have to prove. But if there is a question in which you have to apply that, you have to require to prove that AP equal to AQ, then you can use the concept only, nothing else. So this is the first part, कि there is a point lying on the perpendicular bisector of line segment, then you have to prove that that very point is equidistant from both the end point. ये properties है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ यहाँ पर, लेकिन आप प्रॉपर्टीज के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. ये किस पे था? साइड एंगल साइड के बेस पे था. साइड एंगल साइड के बेस पे था. आफ्टर दैट अगर आप कोई क्वेश्चन बनाना शुरू करो तो जो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, वो बेस्ड है दो कंसेप्ट पे, एक साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी पे और एक एंगल साइड एंगल, चाहे एंगल एंगल साइड के, मतलब जो एंगल साइड एंगल का कॉर्लरी है उस पे, इस प्रॉपर्टी पे. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम किसी भी थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लोगों ने कंसेप्ट इतना ही पढ़ा है, हमने तो ऐसे तो आई गिव यू ऑल द स्टेटमेंट, ऑल द रूल्स. सो नाउ यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग बाय एनी प्रॉपर्टीज. बट वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज गिव मी जस्ट डे बिफोर स्टडी ए सोल्यूशन दैट द साइड एंगल साइड एक्सियम जो है ना सर, मैंने उसको प्रूव कर दिया. हमने भाई ऐसा कैसा हो गया? एक्सियम है तो प्रूव कैसे हो गया? तो तुमने कुछ नया कमाल कर दिया. तो अपने उसने प्रूव क्या किया कि जिस साइड एंगल साइड के हेल्प से हम RHS या साइड 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 चाहे एंगल साइड एंगल प्रूव किया है, उसी को लेके उसने प्रूव कर दिया. हमने कहा कि भैया जिससे ये इसका जन्म हुआ है उसी को लेके कैसे तुम प्रूफ कर सकते हो? आप साइड एंगल साइड एक्सियम के पहले का कोई कंसेप्ट लीजिए, उससे प्रूफ कीजिए, तब उस प्रूफ को प्रूफ माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा. ठीक है ना. सो वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1. तो एक्सरसाइज 7.1 and very first question. Before starting the solution, on Monday I have given you some question from lines and angle from reference book. So again I am recalling you or telling you, if there is any question you are not going to solve, one by one you can send me this question. You required to get some doubt to be cleared. So if you send, then before ending of this chapter, when I just going to conclude this very chapter, I will do some doubts raised by you in any of the videos. So now come to the first question. Here in the very first question, ABCD is a quadrilateral. It is given as this one. It is given as a quadrilateral. Figure is this one.
and labeling is A, C, B, D. This is marked, this is marked. Okay. Question is that in quadrilateral A, C, B, D, किसी भी क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेंटम में ABCD नहीं बोलना चाहिए. जैसे ऑर्डर में है, चाहे तो ADBC बोल दो, चाहे ACBD बोल दो. It is necessary to write down. अच्छा, one more thing. We are doing problem of congruency. One very important thing has been just I missed. How can you write the congruency? How can you check that this very triangle is going to be congruent of this very triangle? एक ट्रायंगल का नाम तो हम 6 तरीके से बोल सकते हैं. किसी भी ट्रायंगल का नाम हम 6 तरीके से बोल सकते हैं. But before that, just I'm going to then we are going to I'm going to clear your doubt, which I am raising. AC and AD are given. AC and AD are given. AB bisects angle A. इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. AD इक्वल टू AC. ओके, शो करना है so that the triangle ABC is congruent to triangle ABD. If it is given that this triangle, you have to show that this triangle is congruent to this triangle, then just take the triangles in this very order. What can you say about BC and BD? What can you say about BC and BD? It may be asked that prove that BC is equal to BD. Very simple. If you are going to prove that ABC is congruent to ABD, then you can see the second, third. These two BC and BD are the corresponding sides, so they must be equal by specificity. जो corresponding parts of the congruent triangles equal होता है, तो BC equal to BD, यानी ये congruency जैसे ही होगा तो ये तो equal हो जाने हैं. ठीक है ना? Now, in order to prove this congruency, proof अगर हमें लेना है तो just take in triangle ABC and triangle ABD. What do you find? You will find that in both the triangles ABC and ABD, AB is common. AB is present in both the triangle. You say it common. Then AC is equal to AD. It is given. AC is equal to AD. It is given. And another thing, these two, since this line is bisector of angle BAD, CAD, so we can say that angle BAC equal to BAD. Reason is what? AB bisects angle DAC. एंगल A जो है वो DAC एक्चुअली है. तो क्या हम देखते हैं कि ये दो साइड है इस ट्रायंगल का और उसके बीच का एंगल, ये दो साइड है इस ट्रायंगल का और उसके बीच का एंगल, दे आर इक्वल. सो इफ दे आर इक्वल, द ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD. प्रॉपर्टी कौन सा लिया? दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से. ओके, जब प्रूव हो गया तो सिंस ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD, simply BC is equal to BD. Why? CP CT. Is it? क्या कहेंगे हम लोग BC और BD के बारे में? तो BC इक्वल टू BD. BC is equal to BD by corresponding parts of congruent triangle. Corresponding parts of these two congruent triangles are equal. So this very two sides are equal. AC is equal to AD दिया ही हुआ था. AC AB इक्वल टू AB कॉमन था. हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल AC इक्वल टू एंगल BD, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे.
ये दोनों इसी में क्वेश्चन में ऐड कर दूं कि प्रूव दैट ए बी इज ऑल्सो गोइंग टू बाइसेक्ट एंगल बी। अगर इसी में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि प्रूव दैट ए बी बाइसेक्ट्स एंगल डी बी सी, तो वेरी सिंपल, सिंस ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट बाय सिंप्लिसिटी वी कैन से दैट ए बी सी इज इक्वल टू ए बी डी। ये दोनों एंगल को हम बराबर दिखा सकते हैं, और जैसे ही दोनों बराबर हो गए इसका मतलब ये लाइन जो है इस एंगल को, बड़े से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप इट शुड बी। नाउ बिफोर गोइंग फॉर अनदर क्वेश्चन, I am giving you some concept to find कि which two triangles are going to be congruent. Okay, just see. As I said, a triangle can be written as 6 different way. Simply, a triangle ABC, it can be written as ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, and then CBA. Clear है? So how many ways can you write the same triangle in 6 different triangle? Now, if it is congruent to some another triangle PQR, suppose it is given these two triangles are congruent, but it is not given that which triangle, ABC or ACB or BAC. Suppose I am saying you that BAC is congruent to triangle PQR. That means it is BAC which is congruent to PQR, not ABC is congruent to, not ACB, not BCA, not CAB, not CBA. You may say, sir, what is the difference between these three difference? These 5 more triangles. BAC is same as ABC or ACB. So as BAC is congruent to PQR, ABC is also congruent to PQR. No. Because in this very question it said that angle B must be equal to angle Q. ये जो B है वो P के बराबर होगा. A must be equal to Q. A is equal to Q and C is equal to R. C is equal to R. Okay? क्या मिला हमें? Angle B, angle P, angle A, angle Q, angle C, angle R. और ABC में क्या होता? If ABC is congruent to PQR, then A equal to P, B equal to Q and C equal to R. So एक पार्ट तो मिल रहा है, बाकी दोनों पार्ट एक्सचेंज हो गए. So and also these are the side. AB equal to PQ, AC equal to QR and BC equal to PR. BC equal to PR. यहाँ पर AB equal to PQ, AB equal to PQ, BC equal to QR, AC equal to PR. Only AB is equal to P. जो दो साइड यहाँ दो एंगल इक्वल थे उसी के अपोजिट वाले दिख रहे हैं, बाकी दोनों पेयर फिर बदल गया. So whatever you are going to prove, writing the order of the letters of the vertices of the triangle must be very very important. ये नहीं कि दोनों ट्रायंगल को देखा, देखो इसमें क्या है भाई, इस PQR के कंग्रुएंट BAC है. हम लोग क्या करते हैं, सीधे देखते हैं ABC is congruent to PQR. That is wrong. That is wrong. So here I am going to take some example. I am giving the parts of the triangles are equal. So which two triangles are going to be equal? Just you see. Here two triangles are given. I am just taking triangle ABC and PQR. Given that AB equal to PR, AC equal to QR,
एंड बी सी इक्वल टू पी क्यू। ये हो गया साइड साइड साइड। फिर दो एंगल ले रहा हूं, एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल जेड, ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू जेड एक्स। यहां दो एंगल और एक साइड है। अब वेदर इट इज ए एस ए और ए एस वी डोंट नो, ठीक है। अगेन एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, एंड बी सी इक्वल टू आर पी। एंगल A equal to angle P 90 degree, BC equal to QR and AB equal to PR, ठीक है। तो ये हमने चार चीजें लिखी, चार दिया है एग्जाम्पल। सबका आपको देखना है। हमने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो इस चीज से दिया है कि हमने जो कंसेप्ट हमने सारा बता दिया। हमें इनको देखना है कि अब ये तो पता है कि ABC द पार्ट ऑफ द दे आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC PQR। अब चूंकि we know that any triangle can be written in 6 different ways, so ABC can be written in 6 different ways, PQR is going to be written in 6 different ways. So which triangle is going to be congruent to which triangle? Now I am writing here कि let ABC is congruent to, okay, एक तरफ का लिख दिया। यहां पर जो PQR का जो 6 डिफरेंट है, PQR, QRP, RPQ, PRQ, RQP एंड देन QPR, ठीक है ना। ये 6 हमने PQR लिख दिए। ABC का ABC लिया, हम उसके 6 पार्ट हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि जस्ट राइट डाउन विच ट्रायंगल ऑफ दीज 6 इज गोइंग टू बी कंग्रुएंट विथ ABC। अगेन हियर ABC एंड XYZ। इधर मैं दूसरा लिख रहा हूं कि ट्रायंगल XZY, अच्छा XZ है, C दिया हुआ नहीं, यहाँ एक C AB है, C ले लेते हैं, इधर Y लेते हैं। XZY इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल, वेदर AB। अब ABC के भी आप 6 अलग अलग पार्ट लिख लीजिए। यहाँ भी ABC है, ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू विच, ABC और BAC और CAB और BCA वट एवर। यहाँ भी ट्रायंगल PABC ले रहा हूँ, इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल। ट्रायंगल के आप नाम 6 के 6 अलग लिख सकते हैं। चलिए, to start with very first question, when the 3 sides are given, you just take ABC का कोई 2 साइड ले लो आप। हमने कौन सा लिया? I have taken AB and AC. What is this vertex is common in both the, that is A. इसमें कॉमन क्या है? A। और इन दोनों साइड के इक्वल जो 2 साइड हैं उसमें कॉमन क्या है? तो दैट इज R। तो A को करस्पॉन्ड करेगा R। तो इसके पहले प्लेस पे A है, तो इधर से जो पहले प्लेस में R है, एक यहां है और एक यहां है, तो यही दोनों होंगे, बाकी नहीं होंगे, यानी बाकी सब खत्म। 4 ऑप्शन तो गायब हो गए। क्लियर है? कोई भी 2 साइड लिया, जैसे मैंने ये 2 साइड अगर ले लिया, व्हाट यू सी, AC एंड BC, विच वर्टेक्स इज कॉमन, दैट इज C, एंड दीज 2 आर इक्वल टू दीज 2 साइड्स। इन दीज 2 साइड विच वर्टेक्स इज कॉमन, दैट इज Q। सो इन प्लेस ऑफ C यू विल फाइंड Q। तो C इज एट द 3rd प्लेस, सो Q must be at the 3rd place. In this case Q is the 3rd place, so this is going to be cancelled. So ABC is congruent to triangle RPQ by side. Clear? So this is the order. और ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि कंग्रुएंसी जब लिखेंगे, कभी कभी हमें कंग्रुएंस
जब हम कर पाएंगे किसी ट्रायंगल को, तभी उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हम लिख पाएंगे। हमने लिखा कंग्रुएंसी कुछ और, मान लो अगर इसमें गलती से हमने आर क्यू पी लिख दिया होता तो ए बी आर पी के इक्वल ना हो के आर क्यू के इक्वल हो जाता। इज इट क्लियर? नाउ ऑन द सेम वे वी आर गोइंग टू ट्राई टू दिस प्रॉब्लम। एक्स जेड वाई इज कंग्रुएंट टू व्हाट? यहां पर दो एंगल दिया हुआ है। पहले देखो कि क्या है, दो एंगल ए बी और उसके बीच का साइड, दो एंगल एक्स जेड उसके बीच का साइड, यानी एंगल साइड एंगल ये लगना है। तो एंगल से दिए रहते हैं, उसका बहुत बढ़िया चीज है। एक्स किसके इक्वल? ए के, तो जहां एक्स है वहां तो ए लिख दो भाई। दूसरा जेड किसके? बी, तो दूसरा जेड है तो दूसरा जगह बी लिख दो। ऑटोमेटिक जो थर्ड वर्टिसेस सी है वो यहां आ गया। इसमें सी दिख नहीं रहा, फिगर रहेगा। सो इधर ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा एक्स वाई जेड है। लेकिन देखिए ए बी सी एक्स वाई जेड के नहीं, ए बी सी किसके? एक्स जेड वाई के कंग्रुएंट हुआ। क्लियर? इसी तरह आइए पी क्यू आर, अगेन यहाँ दो एंगल है लेकिन ए बी और बी सी है। तो थोड़ा सा फिगर हम लोग देख लेते हैं। ए बी सी, ये दोनों एंगल और ये साइड। ठीक उसी तरह ए के ट्रायंगल ऐसे ही बनाते हैं, लेवल उस तरह। ए की जगह क्या लिखें? क्यू, और बी की जगह क्या लिखे आर, तो ऑटोमेटिक ये पी हो गया। तो देख रहे हैं क्यू, ए के क्यू, बी से, तो बी सी इक्वल टू आर पी, बी सी इक्वल टू आर पी। यहाँ पर एंगल साइड लगेगा और क्या लगेगा? पी तो नहीं, क्यू और आर एंगल इक्वल है। क्यू और आर, क्यू आर की जगह ए एंड बी, क्यू की जगह ए, सेकंड प्लेस पे ए, थर्ड प्लेस पे बी, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सी। ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल से। क्लियर? अब यहाँ पर राइट एंगल्स है। देखिए एंगल ए और पी, दो ट्रायंगल होंगे यहाँ पर भी। इफ यू आर गोइंग टू, हम यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ मिटा दे रहे हैं। इसको समझाने के लिए फिगर बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ सम फिगर डायग्राम। सो इसको दिया मिटा हमने, ये कंग्रुएंसी। इन future class, in class 10 you are going to study about the similarity and same thing, similarity and incongruency. Writing the order of the triangle be important. Here we have written ABC at right triangle, another right triangle, A and P. So A and P are 90 degree each. BC हमने ये लिया। अब BC is QR, QR, ये हमने आर क्यू लिख दिया। तो ये इसके इक्वल, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल, एंड ए बी इक्वल टू पी आर इक्वल। ओके, बट वी फाइंड दैट राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, यानी यहाँ पर आर एच एस तो लगना है। क्या लगना है? आर एच एस। तो सबसे पहले क्या, आर एच एस में जो एंगल वाला पार्ट है ए है, तो ए की जगह पी तो रख देंगे हम, पी। And now think about again the two sides. Here B is common, here R is common. So where B, where R, and then Q. Whenever you compare two sides, take the common vertex as corresponding angles. So BC and AB, included angle is B. QR and PR, included angle is R. So B must be equal to R. B must be equal to R. अब देख लो आप, अगर ये कंग्रुएंट है तो ए बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग पी आर हुआ कि नहीं? अगर मैं यहाँ पी क्यू आर लिख देता तो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाता, जबकि दिया हुआ ए बी इक्वल टू पी आर। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू बाई आर एच एस प्रॉपर्टी। सो हियर आई एम ट्राइंग टू just correctly writing the congruency of two triangles. Okay, so now after that take another question. Okay, this is question number 2 of exercise 7.1. ABCD is a quadrilateral again. ABCD is a quadrilateral. ABCD
इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्यू ए डी लिखा तो समझ लो क्वाड्रिलेटरल, इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, विथ लिख देते हैं यहां पर, विथ ए डी इक्वल टू बी सी, ओके, एंड डी ए बी मीन्स ये लाइन आपको मिलाना पड़ेगा, इक्वल टू सी बी ए, ये लाइन भी मिलाना पड़ेगा, ये एंगल इसके इक्वल है, डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, ठीक, प्रूव दैट व्हाट, पहला ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये जो ऑर्डर दे देता है ना वो हमारे लिए आसान हो जाता है, जब कहा है कि प्रूव बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन राइटिंग देम इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, एंड थर्ड इज ए बी डी इज बी ए सी। देखिए एक दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए बी डी बी ए सी, फिर एक साइड इक्वल दिखाना है और एक एंगल इक्वल दिखाना है। अब ध्यान से, इफ यू आर गोइंग टू सी, इफ यू जस्ट प्रूव ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, जैसे ही the moment we have proved this one, you will find that AD is equal to BC. BC दिया है ना congruency, ABD, oh sorry, this one is BD. So BD equal to AC, second third, and ABD, angle ABD 1 2 3 BAC. तो ये प्रूफ हुआ नहीं कि ये दोनों तो ऑटोमेटिक प्रूफ कर देंगे, दो ही सेकंड में समझो प्रूफ हो गया। तो आवर एम इज टू प्रूव फर्स्ट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। नाउ अभी तो हमने कहा कि इसमें साइड एंगल साइड या एंगल साइड लगेगा, चाहे एंगल साइड एंगल लगेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में या कभी किसी टेस्ट वगैरह में या कोई किसी ने पूछा तो थोड़ी नहीं याद रहेगा कि ये किस एक्सरसाइज का है और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी। यहाँ तो देख के हमें खोजना पड़ेगा कि विच प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर। सो जस्ट पिक्चर को आप क्या करो, थोड़ा सा अलग करो। मैं क्या किया, जो ABD है वो जिस फॉर्म में है वैसे लिखा, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ D है, फिर BAC को भी उसी तरह अलग कर दिया है ऐसे, यहाँ C है, यहाँ B है, यहाँ A है। दोनों पिक्चर को एक जगह ना रखकर अलग अलग रखा है, मतलब यहाँ से कॉपी किया, यहाँ लिख दिया, यहाँ से कॉपी किया, इधर कर दिया। अब इन दोनों में क्या क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC, ये दोनों साइड इक्वल है, ओके। फिर एंगल DAB, ये एंगल इसके इक्वल है। बस फिगर से अभी तो ऐसे दिखा। एक चीज और आप ध्यान से देखो कि ये जो अलग अलग फिगर है एक्चुअली है क्या, वो तो एक ही साइड है AB। सो ये एक न दिखाई देने वाला दिया हुआ चीज है, that AB equal to B है। So what do we find, that two sides and an included angle, are given. So in triangle what we find, that AB equal to AB, that is what, common. There is no need to draw this figure, ये केवल समझाने के लिए हमने किया। Then फिर AD equal to BC, angle DAB equal to CBA। अब in order to write the triangle ABD, वो तो उसी कंग्रुएंसी में होना ही चाहिए ट्रायंगल BAC, साइड एंगल साइड कंग्रुएंस रूल होना भी चाहिए। देखिए इन दोनों में A कॉमन है, इन दोनों में B कॉमन है, तो A के जगह B, एंगल A एंगल B, तो ये दोनों चीज हो गया। अब जो तीसरा AD है, तो कॉमन वाला अगर B निकल गया तो जो अनकॉमन है A B के जगह तो B A के जगह, तो जहाँ B है वहाँ A, ऑटोमेटिक D के जगह C। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्लियर? चलिए चलते चलते थर्ड क्वेश्चन है,
AD and BC are equal perpendiculars on a line segment AB. एक लाइन सेगमेंट है AB and this two are BC and AD are equal. They are perpendicular as well as equal. मतलब these two sides are equal. Figure is black. This is O. So here AD and BC are equal perpendiculars on AB. Prove that CD bisects AB. Prove that CD bisects AB. CD bisects AB means O is the midpoint of AB. Whether O is the midpoint of CD or not, I don't know. Actually, O is also going to be midpoint of CD. But question is, CD bisects AB. CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AB का जो दो टुकड़ा हुआ वो दोनों इक्वल दिखाना है. नहीं, O is midpoint of AB. ओके, सो दो ट्रायंगल हमें दिखाई पड़ गए. इन ट्रायंगल अब अपनी तरफ से अब जब नाम लेंगे कि कैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, AD इक्वल टू बी, जो कॉमन वर्टेक्स है वो उसको ले लेते हैं O, फिर 90 OAD एंड OBC, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं. एंड व्हाट कैन आई से, दीज टू एंगल्स आर इक्वल. एंगल AOD BOC, vertically opposite angle. One more, angle OAD equal to OBC, 90 degree given. एक और चीज दिया हुआ है, AD equal to BC. ये दिया हुआ, ये दिया हुआ. आइए अब ऑटोमेटिक दिखा. तो क्या देख रहे हैं, एंगल साइड, एंगल साइड. सो ट्रायंगल OAD is going to be congruent to triangle OBC. पूछा नहीं है, यहाँ अपने से देखना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके congruent है. उल्टा सीधा लिख देंगे, इधर DAO उधर CBO, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा. या BOC लिख देंगे तो OAD OBC. कैसे लिया हमने, AAS congruence corollary. कंडीशन रूल सब भी लिख सकते हैं, रूल ही है एक तरह से. अब इससे कह सकते हैं OA is equal to OB. Can I say that OA equal to OB? Since triangle are congruents, the corresponding parts of the sides are equal. OA equal to OB. If OA equal to OB, that means O is the midpoint of AB. O is the midpoint of AB, or rather you can say that CD bisects AB. Clear? So this is the third question of the exercise, and we are in the second day of the chapter, and here are 8 questions, out of which 3 I have done. 5 more questions. If you will try, it is well and good. Otherwise I will give you the solution. Okay dear, thank you. Again I am requesting you now, the word I am used, request. Please ask your doubt. Ask, because I am the I think it is the 6th or 7th chapter. 1 2 3 4 5 6 7th chapter we are in 1 month. So you just think we are very fast. Please ask your question, ask your doubt. मे बी मैंने जितने क्वेश्चन दिए उसके अलावा भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं चैप्टर्स के, आप उसको पूछोगे स्लो हो जाएंगे हम. ओके, बिना हेजिटेशन के एकदम फ्री माइंड से पूछिए. पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपको.